ਸ਼ਲੋਕ ਪਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤੇ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲੇ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਰਚਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਐਬੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਇਹ ਉਪਕਰਮ ਸੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇਹ ਉਪ ਸੰਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਉਹ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਉਪਮਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰਾਹਿਜ ਹੋਈ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਪ੍ਰਥਮ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤੇ ਮਹਤ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ, ਭੈਣਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ, ਪੋਤਰੇ ਕਿੱਥੇ। ਮੂਲ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਗੁਣ ਕਿੱਥੇ, ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ, ਸਹਿਜ ਕਿੱਥੇ, ਸੀਤਲਤਾ ਕਿੱਥੇ। ਔਰ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ, ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੈਸੇ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਤੈਸੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਦਰਅਸਲ ਅਜੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਜੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਆਉਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦੇਣ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੋਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੂਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ तमाम ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੱਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਮਹਾਨ ਹੈ। तो शरीर दा मूल चूंकि मां बाप ने, तो आद काल तो लोकी मनुखता साडे देश दे
ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਜੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਕਿੱਥੇ? ਮੂਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੂਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ तो फिर परम रस किथे, नाम दा रस किथे ते परमात्मा दा अनुभव किथे। तो जैसे संसार दी सारी सिरजना मां बाप तो आरंभ होंदी है, धार्मिक दुनिया दा सारा आनंद गुरु तो चलदा है, गुरु तो मिलदा है। पर हुण इत्थे सवाल खड़ा हो जांदा है, गुरु कौन है? मां बाप परमात्मा ने दिते ने, क्या गुरु भी परमात्मा ने दिता है? सतगुरु दा श्लोक तो कुछ ऐसा ही कह रहा है, गुरु भी परमात्मा दी देन है, जैसे कि मां बाप परमात्मा दी देन है। तो इस जीवन विच पावन जो है गुरु है, पानी पिता है, धरती मां है। इसका निखेड़ा इस तरीके नाल करना पएगा कि बोलण नाल संबंध जुड़दे ने ते पवन करके असी बोलते हैं, देही माटी बोले पाउण। पाउण ही नहीं ते बोलना नहीं, ते जे बोलना ही नहीं ते संबंध ही नहीं। बोल के संबंध जुड़ते ने संसार नाल, बोल के ही संबंध जुड़ते ने निरंकार नाल, परमात्मा नाल। जो जिस व्यक्ति नाल जितनी लंबी चौड़ी बोल चाल रखदा है, उस बोल चाल तो अंदाजा लग जाता है इत्थे उतना ही गूढ़ा ते लंबा संबंध है। ते जो जितना ज्यादा जप करी जा रहा है, जो जितना ज्यादा बाणी बोली जा रहा है, जो जितना ज्यादा भजन गायन कीती जा रहा है, शब्द गायन कीती जा रहा है, बोली जा रहा है, उसदे बोलण नाल उतना ही परमात्मा नाल गूढ़ा संबंध जुड़ जाता है, गूढ़ा रिश्ता जुड़ जाता है। पर चूंकि बोलना पवन करके है, इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने पवन गुरु है ते बोलन हार परम गुरु एही। परम गुरु एही बोलन वाला है। ते कौन बोलदा है? देही माटी बोले पवन। तत्तां दे चों ये तत्त पवन सिरमौर है। फिर पानी पिता माता धरत महत, मां की रकत पिता बिंद धारा। पिता दा पानी, माता दी मिट्टी। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। गिरवी मिट्टी खून, भाव मां दा खून ते मिंज ते पिता दा पानी। और इस तरीके नाल पवन दा सुमेल इस शरीर दी बनतर। शरीर दे च पवन गुरु, शरीर दे च पानी पिता, और शरीर दे च जो धरती दा हिस्सा है ये मां है। उंज भी आदि काल तो साडे देश दे च धरती नूं माता ही कहंदे आए ने, और देश नूं मातृभूमि कहंदे आए ने। ये मां है, ये धरती मां है। जिथे मनुख दा जन्म होया उत्थों दी धरती मां है। ऐसा क्यों आख्या गया? दरअसल जो मनुख दा ये ढांचा है, अगर इसनूं पूर्ण तौर ते देखिए, जो बुढ़ा है कुछ दिन पहले जवान सी, जो जवान है कुछ दिन पहले बच्चा सी, जो बच्चा है कुछ दिन पहले मांस दा लोथड़ा सी, जो मांस दा लोथड़ा है कुछ दिन पहले बिंद सी, जो बिंद है कुछ दिन पहले खून सी, जो खून है कुछ दिन पहले खुराक सी, जो खुराक है कुछ दिन पहले मिट्टी सी। मिट्टी मूल है शरीर दा। तो मिट्टी यात्रा ते चली, मिट्टी विचों निकली खुराक, खुराक तो ही खून बनिया। अगर कोई खुराक ना खाए खून कित्थों बनेगा? तो मिट्टी विचों निकली खुराक, खुराक तो बनिया खून, खून तो बनिया बिंद, बिंद तो बनिया मांस दा लोथड़ा, ते मांस दे लोथड़े तो ही बनिया बच्चा, फिर जवान, फिर बुढ़ा, ते बुढ़ा फिर मिट्टी दे च मिट्टी। कबीर धूल सकेल के पुड़िया बांधी दे, दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। तो शरीर दा मूल तत्व
ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਵਨ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੇ, ਪਵਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋੜ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਜੋੜ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਬਦ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਗਿਆ। तो महाराज कहते ने चूंकि बोलना पवन करके है, पवन गुरु है और ये पानी पिता है, ये धरती मां है, इस शरीर दे गुरु विराजमान है, माता विराजमान है, पिता विराजमान है और इस ढंग नाल इस शरीर की सिरजना हुई, रचना हुई। महाराज कहते ने दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत। ये दिन ते रात खिडावे ने, दाई है, दाया है। आखिर जो कुछ भी असी करदे हां दिन दे अंदर करदे हां, रात दे अंदर करदे हां ते दिन रात दे च ही ये जगत दे जीव खेडदे ने। रात नूं विश्राम करदे ने, दिन नूं धंधा करदे ने, चोग चुगदे ने, रिजक लभदे ने। गरज के दिन ते रात मनुख नूं अपने विच उलझाई रखदे ने। खिडावे दा कम की है? बच्चे दा मन परचाई रखना, बच्चे नूं उलझाई रखना, बच्चे नूं खेड दे च लीन रखना। तो ये दिन ते रात दोवें खिडावे ने। दाई लोरी दे के बच्चे नूं सुला देंदी है, दाया खिडावा दिन भर खिडौणियां नाल बच्चे नूं खिडांदा है। तो दिन दाया है, खिडावा है और रात दाई है। ये मिठी लोरी दे के जीवां नूं सुला देंदी है। पशु पंखी मनुख कायनात दा जर्रा जर्रा सो जांदा है और दिन खिडावा है। हर पासे मनुख भजदा है, दौड़दा है, जीव भजदे ने, दौड़दे ने और ये सारा दिन अपना यही हरकत दे मनुख रहिंदा है। कदी इस पासे जा, कदी उस पासे जा, कदी कुछ कर, कदी कुछ कर। ये सारी हरकत चूंकि दिन दे अंदर है तो साहिब कहंदे ने दिन खिडावा है ते विश्राम रात नूं है। इस वास्ते रात दाई है। इते निंद्रा दी मिठी लोरी ही जो ऐसी देंदी है कि सारी कायनात नींद दी आगोश दे चली जांदी है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने दिन ते रात दाई ते दाया ने खेले सगल जगत। इहदे च ही तमाम जगत दे जीव खेड रहे ने, विचर रहे ने। चंगियां आईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर। हुण जीवां दियां जिहड़ियां चंगियाईयां ने ते बुराइयां ने, ये धर्म दी हजूरी दे च वाचियां जांदियां। ऐसा नहीं कि जो बुरा कर छड़िया है, कर छड़िया, करके छड़िया नहीं, करके कोल है। चंगियाई कीती है, करके छड्डी नहीं, वो कोल है, ओदा सूक्ष्म हिस्सा कोल है, ओदे संस्कार कोल ने। ते ये धर्म दे द्वार दे पढ़े जाणगे। धर्म परमात्मा अकाल पुरख दे द्वार ते पढ़े जाणगे। भाव उस अकाल पुरख दा ऐसा एक नियम है कि मनुख जो कुछ करदा है उन्होंने वाचिया जांदा है ते उहदे मुताबिक ही जीवन रेखा अगे दी तोरी जांदी है। तो साहिब कहंदे ने चंगियां आईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। हुण ऐसे कर्म जिन्हां दे ते बुराई दी मोहर लगी हुई है वह मनुख दूर चला गया। ऐसे कर्म जिन्हां दे ते नेकी दी मोहर लगी हुई है परमात्मा दे नेड़े चला गया। मनुख नूं वेख के असी अंदाजा ला सकते हां अगर इहदे आमाल शुभ ने, इहदे कर्म शुभ ने
तो ये बंदा परमात्मा दे निकटवर्ती है, ये बंदा अकाल पुरख दे नेड़े है। सानू कई दफा उस नाल याराना गणना पैंदा है जो किसी बादशाह दे नेड़े है, हुक्मरान दे नेड़े है, ते असी उसनू मान सन्मान देंदे हां भी ये ते राजे दे नेड़े है, ये ते हुक्मरान दे नेड़े है। जगत उसदा भी सन्मान करदा है जो हुक्मरानां दे महान हुक्मरान परमात्मा दे नेड़े होवे। राजियां दे महाराजे उस परिपूर्ण परमात्मा दे नेड़े जो चला जाए उसदा भी सन्मान हुंदा है, उहदी भी मान प्रतिष्ठा हुंदी है। तो साहिब कहंदे कौन नेड़े है जिहदे कोल चंगियाईयां ने, और कौन दूर है जिहदे कोल बुराइयां ने। दूरी दुख है, नेड़ा सुख है, दूरी नरक है, नेड़ता स्वर्ग है, दूरी अंधकार है, नेड़ता प्रकाश है। कोई मनुख जितना भी परमात्मा तो दूर चला जाएगा उतना ही घुप अंधेरे चले जाएगा, और अंधेरे दे सिवाय भटकना तो होर कुछ भी नहीं, तलियां मलन तो इलावा होर कुछ नहीं। जो मनुख जितना नेड़े नेड़े परमात्मा दे होंदा जाएगा प्रकाश दी दुनिया दे प्रवेश करदा जाएगा। यह इंज कहो कोई जितना अग दे नेड़ा होंदा जाएगा अग उतनी उसनू झलसांदी जाएगी, तपांदी जाएगी। ते जो जितना हिमालय पर्वत दे नेड़े होंदा जाएगा शीतल होंदा जाएगा, ठंडा होंदा जाएगा। जो जितना बगीचे दे नेड़े होंदा जाएगा मुअत्तर होंदा जाएगा, ते जो जितना गंदगी दे ढेर दे नेड़े होंदा जाएगा आखिर उत्थों दी बदबू दे नाल अपने दिल दिमाग नू खराब कर बैठेगा। एक कुंठित वातावरण विच ओ फसेगा और दब के चीखेगा, औखा होवेगा। परमात्मा दे नेड़े होना सुंदर बगीचे दे नेड़े होना है, परमात्मा दे नेड़े होना सुख ते आनंद दे नेड़े होना है, और दूर होना अंधकार दे च भटकना है, दूर होना नरक है। तो दरअसल ऐसा भी देखा गया है कि जो परमात्मा तो दूर है किसी हद तक सब तो दूर हो जाता है। ओदी नेड़ता मां नाल भी नहीं होवेगी, ओदी नेड़ता पिता नाल भी नहीं होवेगी, ओदी नेड़ता पुत्रां नाल भी नहीं होवेगी, ओदी नेड़ता भरावां नाल भी नहीं होवेगी, ओदी नेड़ता पड़ोसियां नाल भी नहीं होवेगी, प्रांत वासियां नाल नहीं होवेगी, देश वासियां नाल नहीं होवेगी। क्यों कि जो मूल मरकज तो दूर है वो सब तो दूर हो जाता है। जैसे जो दरख्त दी जड़ां तो दूर है वो दरख्त तो भी दूर है, ते जो मूल केंद्र मरकज परमात्मा तो दूर है सब तो दूर है। इस तरह दे पिता दा कोई भरोसा नहीं कीता जा सकदा कि बच्चियां नाल इंसाफ करेगा जो परमात्मा तो दूर है, और इस तरह दे भरा दा की भरोसा जो परमात्मा तो दूर है। यकीन जानो ओ भरा दे भी नेड़े नहीं, ओ पिता पुत्रां दे नेड़े नहीं, ओ पति पत्नी दे नेड़े नहीं है, और ओ पत्नी पति दे नेड़े नहीं है। नास्तिकता दे घुप अंधकार दे डुब के यूरोप ने ते होर अन्य देशां ने तजर्बा करके वेख लिया कि परिवार बिखर गए ने, भरा तो दूर हो गए, बच्चे मां बाप तो दूर हो गए, मां बाप बच्चियां तो दूर हो गए, और इतनी दूरी कि नेड़ता दिखाई नहीं देंदी। कारण की है? दरअसल जो मूल तो दूर हो गया वो डालियां तो भी दूर हो गया, जो जड़ां तो दूर हो गया वो पत्तियां तो भी दूर हो गया, जो परमात्मा तो दूर हो गया वो जगत तो भी दूर हो जाता है, जो निरंकार तो दूर हो जाए वो संसार तो भी दूर हो जाता है। कौन नेड़े है ते किहदी नेड़ता दे उत्ते भरोसा कीता जा सकदा है? दरअसल जो परमात्मा दे नेड़े है। शेख सादी ईरान दे प्रसिद्ध सूफी संत दा कहना है कि खुदा तरस बायद अमानत गुजार, जिहदे कोल धन दी असमत दी इज्जत दी परिवार दी मुल्क दी या कौम दी अमानत रखनी है, वेख लेना उसदा खुदा तरस होना बड़ा लाजमी है। अगर वो खुदा दे नेड़े नहीं तो अमानत दी खयानत कर देगा। जो असमत उसनू सौंपी है वो सही सलामत नहीं वापस लौटन लगे, जो दौलत उसनू सौंपी है वो खयानत होवेगी। वो कौमी पद्धर ते खयानत करेगा, वो देश पद्धर ते खयानत करेगा। अमानत उसनू सौंपनी है। दरअसल जिहड़ा परमात्मा दे नेड़े है, खुदा तरस बायद अमानत गुजार, जो खुदा तरस नहीं ते खुदा दे नेड़े नहीं, परमात्मा दे नेड़े नहीं, दरअसल वो ईमान दे नेड़े नहीं, ते जो ईमान दे नेड़े नहीं होते बेईमान है, जो प्रकाश दे नेड़े नहीं होते अंधकार दे है,
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਜਗਤ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ 12ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। हे ਰਾਮ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਤੇਥੋਂ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਨੇੜਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਚੈਨ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ। ਤੋ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜੋ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ, ਜ਼ਾਲਮ, ਚੋਰ, ਯਾਰ, ਬਦਮਾਸ਼, ਗੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਸੀਲ, ਸੰਜਮੀ, ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਮ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਨਰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਾਲਨਾ ਘਾਲ ਲਈ, ਸਫਲ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਘਾਲਨਾ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਘਾਲਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੌਣ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਾਲਨਾ ਘਾਲ ਲਈ ਉਸਨੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ। ਆਖਿਰ ਧਰਮ ਧੁਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਚ ਜੁੜ ਗਈ, ਮਾਨੋ ਜਗਤ ਦੀਆਂ तमाम ਘਾਲਨਾ ਉਹਨੇ ਘਾਲ ਲਈਆਂ, ਸਫਲਤਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਘਾਲਨਾ ਜਗਤ ਦੀ ਘਾਲੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਔਖੀ ਹੈ ਇਹ ਘਾਲਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪ ਕੇ ਉਸੇ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਜੋੜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਾਲਨਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। तो प्रश्न खड़ा होगा, ये जो नाम जपना है इतनी वड्डी जो है साधना है, मेहनत है, इदा फल की है? इदा फल है परमात्मा। ते परमात्मा फल कैसा है? परम आनंद, परम रस, परम सुख, परम शांति, परम हलेमी ते समूह गुणा दा सार। तो साहिब कहंदे ने जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्हां ने सुरत नाम दे च जोड़ी, जिन्हां ने नाम जपिया, जिन्हां दी घालना सफल होई, दरअसल मुख उन्हां दे ही पवित्र ने। पानी दे नाल मुख नहीं पवित्र होंदा, साबण पाउडर इत्यादि मलण दे नाल मुखड़ा पवित्र नहीं होंदा। अंदर दा क्रोध मुखड़े ते प्रगट होंदा है, अंदर दी नफरत मुखड़े ते प्रगट होंदी है, अंदर दी वासना मुखड़े ते प्रगट होंदी है, अंदर दा झूठ मुखड़े ते प्रगट होंदा है।
पानी नाल मुखड़ा धोता है, लेकिन मुखड़े ते झूठ प्रगट हो रहा है, मुखड़े ते क्रोध प्रगट हो रहा है, मुखड़े ते काम प्रगट हो रहा है, मोह प्रगट हो रहा है, अहंकार दी प्रदर्शनी हो रही है मुखड़े दे राही, अखां दे चों, मत्थे दी तीवड़ियां दे राहों। समूह इसदा मस्तक दस रहा है, यह अहंकारी है, यह क्रोधी है, यह वासना दे च ग्रसिया होया है। तो इस तरीके दा जिहड़ा अपवित्र मुखड़ा है ते अपवित्र भाव जो मुखड़े ते प्रगट हो रहे ने, ये पानी नाल धो के नहीं दूर कीते जा सकते। महाराज कहते ने ये ते नाम जपण नाल ही मुखड़ा पवित्र होंदा है। तो जैसे कोई नाम दे सुरत जोड़दा है, शब्द दे सुरत जोड़दा है, उसदा मुखड़ा इतना पावन, मुखड़े ते ही हलेमी प्रगट होंदी है, मुखड़े ते ही सच प्रगट होंदा है, मुखड़े ते ही समदृष्टि प्रगट होंदी है, मुखड़े ते ही संतोख प्रगट होंदा है, जिसनों मेरे पातशाह कहंदे ने गुजड़ा लद्धम लाल मत्थे ही प्रगट थिया। एक गुप्त लाल लभ्या है जो मस्तक ते प्रगट हो गया है। तो साहिब कहंदे जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्हां ने नाम जपिया उन्हां दे ते मुख उजले होए, पर उन्हां दा सदका होर भी कईयां दे झूठ दे बंधन टुट गए, होर केती छुट्टी नाल, होर भी कईयां दी बंद खलासी होई। जिवें किसे ने अपने कपड़ियां नूं सेंट लाया है ते ठीक है, उन्होंने ते खुशबू आ रही है, पर उहदे कोल भी जिहड़ा बैठ जांदा है उन्होंने भी खुशबू मिल जाती है। जिन्हें नाम जपिया है रास्ते उन्होंने मिल रहा है, आनंद ते उन्होंने मिलिया है, पर उहदे कोल भी जिहड़ा बैठ जांदा है उन्होंने भी कोई मस्ती मिल जाती है, उन्होंने भी कोई सुरूर मिल जाता है। ये हकीकत है, बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। इस वास्ते नाम रसियां दी संगत विच बैठण दी सानू ताकीद कीती गई है, ते नाम रसियां दी संगत विच बैठ के मनुख नूं नाम जपण दी प्रेरणा मिल जाती है। भई इहने सेंट लाया और ये मुअत्तर होया होया है, मैं भी लावां, मैं भी अतर लावां, मेरे विचों भी खुशबू प्रगट होवे। तो इस ढंग दी प्रेरणा भगतां तो मिल जाती है, संतां तो मिल जाती है। साहिब कहंदे ने उन्हां दे ते मुख उजले ने जिन्हां ने नाम जपिया है, पवित्र ने, पावन ने, पर इन्हां पवित्र मुखड़ियां करके होर भी कई पवित्र मुखड़े हो गए, होर भी कईयां दे झूठ दे बंधन टुट गए, दुख दे बंधन टुट गए, और उन्हां दी झोली सुख दे नाल भर गई। ये जपजी साहिब दा आखिरी श्लोक मोर, जिहदे च धर्म, गुरबाणी, सभ्यता, इंसानियत दा सार साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने वर्णन कर दिता है। सतगुरु रहमत करन कि हर मनुख दी जपजी साहिब नूं सुन के, अर्थ विचार नूं सुन के जपण दी भावना पैदा होवे, ते हर मनुख दी ये घालना गुरु नानक देव जी महाराज सफल करन।